बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सातकैन एजुकेशन सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर क्लास 8-9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 स्टेट्स ऑफ मैटर। बुक पेज नंबर 98-99, सेशन नंबर 1। First of all, we will discuss what is matter. Matter is defined as anything that has mass and occupied space. This universe is made up of matter. Anything that exists in this world is a matter. There are three common states of matter: solid state, liquid state, and gaseous state. Now here are some properties of these three states of matter. Number 1, solids. Solid has definite shape and definite volume. They do not acquire the shape of the container. In solid, the molecules are very close to each other. Now, properties of liquids. Liquids have no definite shape. They have definite volume. They acquire the shape of container in which they are kept. Some properties of gases. Gases have no definite shape. They have no definite volume. They acquire the shape of container in which they are kept. What is kinetic molecular theory? According to kinetic molecular theory, matter is composed of very tiny particles which are called as molecules. These molecules are always in motion and they possess kinetic energy. The three states of matter depends upon the arrangement, motion and force of attraction between these particles. The difference between solid, liquid and gas is explained as follows. First of all, we will see the kinetic description of solid state. Molecules in solid are tightly packed. They have vibrational motion, back and forth motion. The molecules are fixed in their positions. Due to their fixed position, they cannot slip or slide over one another. They have definite shape and definite volume. जैसा कि हम देख सकते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है कि तमाम जो मैटर है वो टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बना है जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं. इसके अलावा ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये हमेशा मोशन में होते हैं. डेट्स व्हाई दे पजेस काइनेटिक एनर्जी. इसके अलावा अगर हम सॉलिड स्टेट को देखें इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी तो यहाँ पे जो ये इसका मॉडल बना हुआ है यहाँ पे देखें कि किस तरह से ये टाइनी पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. अब ये टाइटली पैक्ड हैं तो इनकी जो आपस में स्पेस नहीं है इसलिए ये सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन करते हैं. बैक एंड फोर्थ मोशन होगी इनकी. इसके अलावा इनकी पोजीशन सारी फिक्स्ड होंगी. एक दूसरे के ऊपर ये ना स्लिप कर सकते हैं और ना ही ये एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं. यही रीजन है कि दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. Now the kinetic molecular theory of liquid state. In liquid state, molecules are not tightly fixed. Their positions are not fixed as compared to gas. Liquid molecules have less kinetic energy. Intermolecular forces of attraction in liquid are greater than gaseous state. Due to greater force of attraction, liquid have a fixed volume. अब लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स आर नॉट टाइटली फिक्स्ड. एज यू कैन सी इन फिगर काइनेटिक मॉडल ऑफ लिक्विड स्टेट, मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस है और ये टाइटली पैक्ड नहीं है एज कंपेयर टू सॉलिड. इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस है. मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस है लेकिन ये स्पेस होने की वजह से इनमें काइनेटिक एनर्जी भी लेस है.
और अगर गैस के से कंपैरिजन किया जाए इनका, तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में ये गैस के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होती है, और इन्हें जिस कंटेनर में डाला जाता है ये उसी की शेप ले लेते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा है, यही रीज़न है कि इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। Now the kinetic molecular theory of gaseous state. In gases, molecules are widely separated from each other. जैसा कि हम यहाँ काइनेटिक मॉडल देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स कैसे एक दूसरे से दूर दूर हैं और इनके दरमियान स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। Molecules are free to move in all directions. The cohesive force in gases are negligible. Kinetic energy of gaseous molecules is very high. Gases have no definite shape and no definite volume. Temperature at which vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure is called boiling point. अब यहाँ पे देखिए, अगर हम तो इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा जगह है, और यही रीज़न है कि इनके दरमियान जो कोहेसिव फोर्स है वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। मॉलिक्यूल्स फ्री हैं, वो तमाम डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि गैसेस का कोई ना ही डेफिनेट शेप होती है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। नाउ द इंटरकन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स, यानी हम इन तीनों स्टेट्स को कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये फिगर बनी हुई है, इसे देखिए अगर हम, तो हमारे पास आइस क्यूब्स हैं एक बीकर में। अब उनको हम हीट करेंगे तो हमारे पास आइस वाटर मिल जाएगा हमें, यानी ये आइस मेल्ट होना शुरू होगी, वाटर में चेंज होना, लिक्विड में चेंज होना शुरू होगी। मज़ीद हीट करेंगे उसे तो तमाम के तमाम मेल्ट होकर लिक्विड पोजीशन में आ जाएंगे वाटर में। उसके बाद मज़ीद उसे हीट पहुंचाएंगे तो क्या होगा, वाटर स्टीम में चेंज होना शुरू हो जाएगा। एज यू कैन सी, यानी सॉलिड स्टेट कन्वर्ट हुई लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट चेंज हुई गैसियस स्टेट में। Now the important properties of liquid, solids and gases depends upon the interconversion of one state into another state. यहाँ पे water की example दी गई है। When ice solid is heated, it is converted into liquid state. When water liquid is heated, it is converted into gaseous state. Some solids are directly converted into gaseous state on heating. This process is called sublimation. कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो कि डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में, और उनमें ये दरमियान वाली लिक्विड की स्टेट नहीं आती है, तो ऐसे प्रोसेस को सब्लिमेशन प्रोसेस कहा जाता है। और एग्जांपल्स ऑफ सच सब्लाइम्स आर आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड एंड नेप्थलीन। The effect of heat on solid, यानी conversion of solid into liquids. On heating solid, the kinetic energy of molecules increases. On continuous heating, the added energy becomes enough to overcome the attractive forces between the molecules. The temperature at which solid melts is called its melting point. At melting point, particles in solid lose their position and arrangement, and thus solid is converted into liquid. At melting point, if heating is continued, the temperature does not rise. This added heat is used in change of state from solid to liquid.
The change of solid to liquid at this temperature is called fusion. अब जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं कि कैसे सॉलिड है और जब हमने उसे हीट करना शुरू किया तो उनके दरमियान काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होगी और कंटिन्यूस हीट करते रहेंगे तो जो एनर्जी हम इसे दे रहे हैं वो इतनी हो जाएगी कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान है वो ख़त्म हो गई और सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में कहा गया है कि वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट होना शुरू होता है वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाया जाता है। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट पर क्या होता है, पार्टिकल्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट से लूज कर देते हैं और वो लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। तो सॉलिड की जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो चेंज हो जाती है और वो चेंज हो जाती है लिक्विड में। अच्छा, अब मेल्टिंग पॉइंट पर अगर हीटिंग को कंटिन्यू रखा जाएगा तो टेम्परेचर राइज नहीं होगा, बल्कि टेम्परेचर जो ये हीट हम ऐड कर रहे हैं ये इसकी स्टेट को चेंज करने में काम आएगा ये टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। द चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्यूजन। अब ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये फ्यूजन, इसकी जो कंडीशन है वो फ्यूजन कंडीशन है और ये इंटर कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में। नाउ द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन लिक्विड स्टेट कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। किस तरीके से अगर हम हीट पहुंचाते रहेंगे लिक्विड स्टेट को तो फिर कन्वर्जन होगा लिक्विड से वेपर्स के दरमियान। On heating, the kinetic energy of molecules increases. At higher kinetic energy, molecules start escaping from the surface of the liquid. The escape of molecules from the surface of liquid is called evaporation. Temperature at which vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure is called boiling point. अब हीट कंटिन्यूस हम हीट करते रहेंगे तो हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स की बढ़ती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ गई कि मॉलिक्यूल्स जो थे उन्होंने सरफेस पर से एस्केप करना शुरू कर दिया, उड़ना शुरू कर दिया। अब ये वाली स्टेट जिसमें मॉलिक्यूल्स इसके उस लिक्विड की ऊपर की सरफेस से गायब होना शुरू हो जाते हैं उसे एवापोरेशन कहा जाता है। और वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल वेपर प्रेशर becomes equal to atmospheric pressure, it is called boiling point. Now here is your homework. Question number 1, describe the important points of kinetic molecular theory. Question number 2, write the kinetic description of solid, liquid and gaseous state in terms of kinetic molecular theory, illustrated by giving its diagram. Question number 3, describe briefly the interconversion of three states of matter. Question number 4, how solid is converted into liquid by heating. Explain it. Question number 5, how liquid is converted into gaseous state by heating. Explain it. Do this work in your copy neatly after filling up the index page. Okay students, thank you. Allah Hafiz.